مجھ سے زیادہ بہتر اندازہ تو کوئی نہیں لگا سکتا. مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اس کا موڈ کیا ہے. یہ ایک وکلا کی تحریک نے سمجھو جنم لے لیا ہے. جب تحریک نے سامنے تحریک آ گئی ہے تو پھر میرے خیال میں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ والا معاملہ حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگی. وہ لوگ جو کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں وہ اپنی صفیں درست کر رہی ہیں, تو وکلا جو ابھی میدان میں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے, ابھی تک صرف لائٹس کنونشن ہو رہے ہیں, سڑکوں پہ ہم نہیں آئے, تو ہم بھی اپنی صفوں کو جو ہے درست کر رہے ہیں. قاضی فیض عیسیٰ کو جو ہے ریفرنس ان کے خلاف واپس ہوا اور وہ باعزت طور پہ جج بنے, مگر اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم غلط آدمی کے ساتھ ہم نے اتنی محنت کی, تو لہٰذا اب تو میں اس کے بارے میں بات کرنا بھی میں کہتا ہوں نہیں فضول ہے, کیا بات کر. ویلکم. آج میرے ساتھ موجود ہیں علی احمد کرد صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر. آج تقریر آپ نے کی, گرجے برسے آپ نے کہا کہ کوئی مائی کا لال یہ آئینی ترمیم نہیں کر سکتا, مگر سر مائی کا لال تو کہتا ہے کہ آئینی ترمیم ہو کر رہے گی. تو دیکھ لیں گے کہ میری بات صحیح ہوتی ہے یا ان کی بات میں کوئی وزن. اچھا سر دیکھیں میں نے ساری زندگی جتنی بھی پالیٹکس کی ہے, کیا پولیٹیکل جب پارٹی کا میں سیکرٹری جنرل تھا نیب کا, اور اس کے بعد جتنی بار پالیٹکس میں, اس ساری میں نے ایجیٹیشنل پالیٹکس میں سب سے زیادہ میں نے رول پلے کیا. تو مجھ سے زیادہ بہتر اندازہ تو کوئی نہیں لگا سکتا. مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اس کا موڈ کیا ہے. تو لاہور میں ہم نے کنونشن کیا, پھر اسلام آباد کا پتا چلا, اب کراچی میں کیا. تو میری سوچ یہ ہے کہ جتنا میرا ایکسپیرینس ہے ایجوکیشنل پالیٹکس کا, کہ یہ ایک وکلا کی تحریک نے سمجھو جنم لے لیا ہے. جب تحریک نے سامنے تحریک آ گئی ہے تو پھر میرے خیال میں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ والا معاملہ حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگی. تو کرد صاحب یہ جو کراؤڈ آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, جو وکلا ہے, نوجوان وکیل ہے پاکستان کے, کس موڈ میں ہے آج کل؟ تو میں نے کہا نا موڈ یہی ہے. آج کراچی میں جو میں نے باتیں کی ہے, جو دوسرے وکلا اسپیکرز نے باتیں کی ہیں, سارے لیڈرز سے, تو ہم نے جو دیکھا ہے جو لوگوں کا رسپانس, اس سے آپ اندازہ لگائیں 6 بجے جا کے تقریباً 6 بجے جا کر یہ سارا جو کنونشن تھا یہ آف ہوا. 6 بجے تک یہ ساری کی سارے وکلا برادری بیٹھی ہوئی تھی. 6 گھنٹے اگر ایک وکلا برادری بیٹھتی ہے اور اسپیکرز کی باتیں سنتی ہے اور نعرے لگاتی ہے, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا سنجیدہ کراؤڈ تھا جس کے جو ہمارے سامنے آج بیٹھا ہوا تھا. کرد صاحب مجھے ایک چیز سمجھا دیں. اس وقت ایک بڑی کنٹروورشل چیز سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھنے کو ملتی ہے اور مختلف زبانوں سے بھی سنتے ہیں کہ یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں, آپ نے سر زندگی صرف کی ہے تحریکوں میں, یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں یہ ایجنسیز کی مرضی کے بغیر نہیں شروع ہو سکتی, یہ ایجنسیز چاہتی ہوتی ہے. نہیں دیکھیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب مجھ سے آپ بات کر رہے ہیں یہ ایجنسیوں والی بات نہیں کرے. 2007 میں بھی میں قسم کھا کے کہتا ہوں جھوٹا آدمی نہیں ہوں. کسی کے مائی کے لال نے نہ مجھے کوئی 5 روپے دیے, نہ کوئی مائی کا لال نے آ کر مجھے ڈکٹیٹ کیا کہ ایسے کرو ایسے نہیں کرو. میرے ساتھ یہ ایجنسیوں والی بات نہیں کریں. باقی کوئی کسی اور کا اگر آپ انٹرویو لے رہے ہیں اس سے بے شک پوچھیں. بہرحال سر یہ تو سمجھا دیں کہ اس وقت کی جو مداخلت ہے, اس وقت جس طرح سے ہائی جیک کیا جاتا ہے, اور ابھی تک وکلا کنونشن تو بہت کامیابی کے ساتھ شروع ہو چکے ہیں, مگر تحریک کی طرف آ نہیں رہے. قاضی صاحب کہہ رہے ہیں میں گھر نہیں جا رہا, ادھر آئینی ترمیم کے لیے تمام راستے جو ہیں وہ سیدھے کر لیے گئے ہیں. دیکھیں نا ابھی تو مطلب میں سخت لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں, ابھی سمجھے صف آرائی ہو رہی ہے. وہ لوگ جو کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں وہ اپنی صفیں درست کر رہی ہیں, تو وکلا جو ابھی میدان میں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے, ابھی تک صرف لائٹس کنونشن ہو رہے ہیں, سڑکوں پہ ہم نہیں آئے, تو ہم بھی اپنی صفوں کو جو ہے درست کر رہے ہیں. تو تھوڑا بہت میرے خیال میں آمنا سامنا تو ہو گیا ہے. اب صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا. قاضی صاحب آپ کو لگتا ہے سینسیبلٹی دکھائیں گے اور باعزت طریقے سے چلے جائیں گے؟ اپنا جو ڈنر ان کا ایک ہونے لگا ہے وہ ڈنر کھا کر نہیں قاضی فیض عیسیٰ مجھے افسوس ہوتا ہے اس کے لیے. میں نے یہ ریفرنس جو اس کے خلاف ہوا تھا سارے وکلا نے اس کے لیے بہت محنت کی اور ہر
तमाम ताकत वकला ने लगाकर हुकूमत को मजबूर किया कि वो इनके खिलाफ जो रेफरेंस फाइल किया था वो वापस ले। उस सारे वकला की जद्दोजहद में मैं सफ़े अव्वल के जद्दोजहद करने वालों में था, सब बिल्कुल। जो मेरा अंदाज था तकरीरों का, उसकी बुनियाद पे काजी फैज ईसा को जो है रेफरेंस उनके खिलाफ वापस हुआ और वो बाइज्जत तौर पे जज बने। मगर अब मुझे अफसोस होता है कि हम गलत आदमी के साथ हमने इतनी मेहनत की, तो लिहाजा अब तो मैं उसके बारे में बात करना भी मैं कहता हूँ नहीं, फजूल है, क्या बात कर। अच्छा, कुर्द साहब मुझे ये बता दें, ये जो रेफरेंस फाइल हुआ था, अगर काजी साहब की ज़िंदगी से ये रेफरेंस निकाल दिया जाए, ओवरऑल देखा जाए, एनालिसिस किया जाए कि ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट किस खाते में रहे या प्रो मुस्लिम लीग नून रहे हमेशा से, ये क्या आपको लगता है काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले और बाद कहाँ पर स्टैंड कर रहे थे, क्या थे? देखिए, ये बलूचिस्तान में भी चीफ जस्टिस रहे और आपको बड़ी हैरानगी होगी, मैं एक दिन भी इनके कोर्ट में पेश नहीं हुआ। हालांकि ये जितनी भी टी पार्टीज होती थी सारे वकीलों के सामने कहते थे कि कुर साहब आप मेरे कोर्ट में क्यों नहीं आते, आप आए मैं आपको रिलीफ भी दूंगा, ये भी कोपन कहते थे। अच्छा, मगर हाँ, मैं कभी भी एक केस आप नहीं ला सकते, वो बलूचिस्तान के वकला से पूछे कि मैं इनके कोर्ट में गया हूँ। तो मगर इनका जो अंदाज था, ये हमेशा कॉन्फ्रेंसों के खिलाफ बात करते थे, ये हमेशा अदालत में डांट डिपट करते थे, ये हमेशा अपने हवाले से वो गुफ्तगू करते थे। हमें अंदाजा उस वक्त तो नहीं था, मगर ये अंदाजा हो गया था कि ये एजेंसियों के बहुत करीब है। तो जब ये चीज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आए, मगर उस वक्त तक इनका रोल तो बड़ा अच्छा था, इसीलिए जब इनके खिलाफ रेफरेंस आया तो सारे पाकिस्तान के वकील इनके हिमायत में खड़े हो गए। मगर बाद में ये अंदाजा हुआ कि नहीं, ये आदमी कमजोर है, या तो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता या किसी किस्म के आसरा कह लें या किसी किस्म के उम्मीद अगर इनको जो दिलाई गई है उस पे एकदम ये टूट के गिर गए। बस सर इस उम्मीद पर बात करेंगे, मगर आपने कहा कि काजी फैज ईसा साहब ने आपको ये भी कभी कहा था कि आप मेरी कोर्ट में आए आपको रिलीफ दूंगा, बहसीयत एक जज ये बात कहना, ये मैं झूठा आदमी तो नहीं हूँ। कितनी दफा कोयटे में टी पार्टी में सारे जूनियर वकील इसके गवाह, ये तो सर ये बड़ी गैर मुनासिब और ये तो एक जुर्म होता है, एक जज कहे कि आओ मैं रिलीफ दूंगा। नहीं, ये कैसी अंदाज है कि भाई कुर साहब आप मेरे कोर्ट में क्यों नहीं आते, आप आए मैं आपको रिलीफ भी दूंगा। तो इसका ये मतलब नहीं था कि आउट ऑफ द वे, मतलब ये है कि भाई गुफ्तगू में थोड़ा सा वो चाशनी पैदा करने के लिए इसने 3-4 दफा कहा, एक दफा नहीं 3-4 दफा कहा। ठीक है सर, मगर खुदा गवाह कि मैं कभी भी पेश नहीं हुआ। ठीक है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट। कुर्द साहब ये जो आपने कहा कि शायद किसी उम्मीद का किसी आसरे का है, वकील बड़े सेंसिबल होते हैं सर, दुनिया के मुल्क के सियासी उतार चढ़ाव को जानते हैं। काजी फैज ईसा साहब भी तमाम चीज़ों को जानने के बावजूद अगर वो रिलीफ के चक्कर में हैं या एक्सटेंशन आईनी अदालत की सरबराही, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं सर, जहाँ पर इज़्ज़त मुकाम मर्तबा होता है, उसके सामने कंप्रोमाइज समझ से बाहर है। देखे ना, ये तो जिस आदमी को कोई उम्मीद दिलाई जाती है या किसी आदमी के सामने कोई चीज रखा जाता है, तो ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सामने रखी हुई चीज या उम्मीद को कितनी अहमियत देता है। तो इन्होंने उनको ज्यादा अहमियत दी और वो उस उम्मीद पे जो है आसरे पे गिर गए। आज रिजल्ट आपके सामने है। तो ये आईनी तरमीम के लिए जो काजी साहब की खिदमात हैं, ये खिदमात तारीख में किन अल्फाज में याद रखी जाएंगी? तो यही है ना, तो उनको ये बताया गया कि आपको एक्सटेंशन देंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट कभी तारीख में ऐसे हुआ नहीं है, एक्सटेंशन देंगे चीफ जस्टिस के लिए 3 साल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा। अभी मतलब आसरा ही ज्यादा मुनासिब लफ्ज है, तो उस पर इंसान है स्लिप हो गया, ये स्लिप होते रहे। अब तो ना 3 साल की एक्सटेंशन मिल रही है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का दूर दूर तक जो है चीफ मिनिस्टर बनने वाला वो उम्मीद भी खत्म हो गई। ठीक है, तो मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आपको लगता है कि अब तक नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था या हो जाएगा या इतनी बिल्कुल बहुत ज्यादती है ना, तो ये कैसे होगा नोटिफिकेशन? सॉरी नहीं, अगर काजी फैज ईसा का कॉन्स्टिट्यूशन जो
नोटिफिकेशन था वो गालबन 80, 82 या 84 दिन पहले हुआ था, और इनके अब सिर्फ 7 दिन रह गए। आज 15 तारीख है, 7 दिन रह गए, 8 दिन रह गए। और 7 दिन तक अगर 7 दिन तक अगर नोटिफिकेशन ना हुआ तो फिर क्या होगा? फिर वही जैसे मैंने कहा, सफ आ रही वो हो चुकी है, फिर देखा जाएगा। फिर आमने सामने होंगे जी। और फिर एक आईनी क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। नहीं, आईनी क्राइसिस तो जो पैदा कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी हमारे, हम तो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वही गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर नोटिफिकेशन नहीं होता और एक चीफ जस्टिस अपनी मुद्दत म्याद खत्म होने के बाद भी बैठा रहता है तो फिर तो हालात बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे सर। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। और ये जो इनको इस पे सोचना उनको चाहिए जिनकी जिम्मेवारी है इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से बचना या पैदा होने नहीं देना। सर वो तो कहते हैं हम बेख्तियार हैं, हम तो सिर्फ बैठते हैं असम्बलियों में जाकर। चलो तो बेख्तियार है तो बेख्तियार है, जो इख्तियार वाले हैं जो सब कुछ कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ वो पिछले इतवार ही था गालबन कि 11:15 बजे तक लॉ मिनिस्टर कह रहा है कि अभी तक मेरे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट है वो अभी तक नहीं पहुंचा है। तो जो ड्राफ्ट जिनके पास मौजूद था या है या जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्राफ्ट किया, फिर ये उनका सोचने का मामला है कि भाई क्राइसिस पैदा होने मत दो। सर वो कहते हैं हम मुल्क के वसी तर मफाद में ये करते हैं, तो हम भी उनसे ज्यादा मुल्की मफाद में लोग हमारी बात को यकीन करते हैं। हम भी तो मुल्की मफाद और आइन की कॉन्स्टिट्यूशनल के सुप्रीमेसी के लिए काम करते हैं। वो कहते हैं अली अहमद कुर्द सर बागी है, हम मुहब्बे वतन ने। नहीं, उनके कहने से तो मैं वो नहीं हो सकता, मैं उनसे ज्यादा मुहब्बे वतन। सारी जिंदगी मैंने जेलों में वक्त गुजारा है, तो लोगों के लिए जदोजहद की है, लोगों के लिए हकूक मांगा है, लोगों के लिए दुख दर्द को मैंने महसूस किया। अब भी मैं कहता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में 11 करोड़ से ज्यादा लोग भूख, गुर्बत तो बहुत छोटा लफ्ज है, अफलास में जो है वक्त गुजार रहे हैं। जहाँ मैं कहता हूँ बड़ा मशहूर मेरा फिक्र है कि रात की तारीकी का अंधेरा बाद में आता है और उससे पहले गरीब के घर में, अफलास ज़्यादा घर में भूख का और गुर्बत का अंधेरा पहले से मौजूद होता है। ये इस मुल्क में सर इसका इलाज ढूंढ लिया कहा जाता है मुल्क में। जी कंप्लीट करें सर। 11 करोड़ अवाम इस मुल्क के शहरी नहीं है। ये जो हुकूमत बैठी है इनका फर्ज नहीं बनता इनको लिए रोजी रोटी पैदा करना, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन इनको हक देता है। ऐसे ही है। बहरहाल सर कहा जाता है शंघाई कोऑपरेशन की कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान में, हमने मुल्क के जो मसाइल थे उनका भी हल ढूंढ लिया है, मैशत बेहतर हो रही है और अब तो चीज़ें पॉजिटिव फिगर्स में जाएंगी। अब आप वो कह रहे हैं हम एक पेज पर हैं। ये हमने पहली दफा देखा है कि कर्जों से जो है मैशत बेहतर हो जाए। ठीक है, करते रहे, पहले भी कर्जे ले के जो है एक बहुत बड़ा कर्जे का एक अमाउंट हमारे जिम्मे पे आ गया। हर शहरी पता नहीं कितने लाखों रुपए का कर्जदार है, तो इनको करने दें। कुर्द साहब आप थके हुए हैं, आज पूरा दिन आपने कॉन्फ्रेंस में गुजारा। आखिर में मुझे ये बता दें मौजूदा हालात के तनाज़र में, आइनी तरमीम के तनाज़र में आपको जो एक मुल्क में सियासी और माशी और आइनी अदम इस्तेकाम है, इस सब के तनाज़र में एक जज ज़्यादा वजनी होता है या एक जर्नैल अख्तियारात के लिहाज से? नहीं, जर्नैल के पास क्या अख्तियार होता है सियासी मैदान में या सियासी अमलदारी में या मुल्क? देखिए, एक सिविल सोसाइटी एक रियासत बनाती है, तो इस मुल्क में जो सिविल सोसाइटी है, जो हम लोग हैं, तो इसमें सारे इख्तियारात तो लोगों के पास है। जनरल के पास क्या इख्तियार है? यही लोगों का मैंडेट होता है, जो लोगों को देख के वो जिन लोगों को मैंडेट मिलता है वो हुकूमत में गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो लिहाजा जनरल का तो कोई रोल नहीं होता। हाँ ठीक है, पाकिस्तान में जनरल बहुत ताकतवर है, इसमें शक नहीं, मगर ये ताकत 70-75 साल तक ये खेल खेला गया। मेरा ख्याल है बस इसको खत्म होना चाहिए। और ये खत्म हो पाएगा? इंशाल्लाह हो पाएगा। और वो कैसे होगा? यही लोगों की जदोजहद से, और इस मुल्क में जितनी जदोजहद वकला ने की है, मेरा ख्याल किसी सियासी जमात ने भी नहीं की है। ठीक है, ये आप समझते हैं कि ये आखिरी दौर चल रहा है ये इख्तियारात से तजावज़ करने का? नहीं, ये तो मैं कोई शेयर नहीं हूँ, कोई पेशेंगोई करने वाला नहीं हूँ। हालात बता रहे हैं।
हाँ, ये है कि बहुत बेहतरी आएगी, बेहतरी बहुत आएगी। ठीक, अली अहमद जब कुर्द साहब, बेहतरी बहुत आएगी तो फिर काफी अरसे तक ये जो हालात में कदम इस्तेकाम होता है ये नहीं होगा। ठीक है। अली अहमद कुर्द साहब, आपकी कीमती वक्त का, आपकी राय का बहुत शुक्रिया सर। बहुत आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।